Hello everyone, welcome to ISF College of Pharmacy. On behalf of ISF College of Pharmacy, I, Dr. Saurabh Kose, welcome you all. As you know that ISF College of Pharmacy is conducting online dialogue series under the aegis of IQAC, ISF CP Moga. In that, today we have very dynamic personality with us, Mr. Utsav Verma, who is Director Pharmacy India, which is one of the platform providing applications and knowledge resource to the competitive examinations in the pharmaceutical sciences. Sir, I welcome you on behalf of ISF College of Pharmacy. And without Thank you, taking sir. much time, I would like to introduce our today's dynamic speaker. Dr. Verma is young dynamic personality connected with over thousands of students throughout India. He has completed his masters in pharmaceutics from prestigious Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Madhya Pradesh. Dr. Verma is having over 5 years of experience for shaping the pharma aspirants for their bright future. He has more than 30 publications in different national and international journals. He has granted an Indian patent at the age of 24. He also chairs Pharmacy India as the chief mentor and director. He has successfully conducted 100 plus seminars and webinars for pharmacy aspirants, guided more than 1,000 students for GPAT and other pharma competitive examinations. Pharmacy India is now 30 plus teams mate, and soon Pharmacy India will be bringing India's biggest pharma website for pharma aspirants and targeting 1 million followers from pharma fraternity. So with this short bio sketch, now I would like to call Utsav Verma ji for his talk. Thank you, sir, and once again welcome to ISFCB Moga Punjab. Thank you, sir, for this kind introduction on behalf of Pharmacy India team. सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सर आपका, चेयरमैन सर का एंड प्रिंसिपल सर का, डीडी गुप्ता सर का, कि उन्होंने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप जो अपने शब्दों को ट्रैक करने का, बच्चों तक पहुंचाने का। और ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज आईएसएफ कॉलेज के थ्रू जारी की गई है, शुरू की गई है, और मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज के साथ बच्चों को भी और जो हमारी फैकल्टीज हैं, टीम है, फार्मा फैटर्निटी है, उनको बहुत मदद मिलेगी इससे सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन ऑल्सो सर। So sir, now I will share some presentation and we will discuss about mainly the main topic of our is pharma competitive exam. तो सबसे पहले मैं शेयर करने से पहले आपके थ्रू, आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि काफी वेबिनार या सेमिनार्स आपने लिए हैं और बहुत बच्चों ने देखा भी होगा, पर ये ही क्यों, अलग क्यों, आखिरकार इससे सीखने को क्या मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पर सिंपल सी एक बात करूंगा, सर भी जानते हैं, और मैं यहाँ पर अगर फिगर्स की बात करूं, हर साल अराउंड 3 से 3.5 लाख फार्मा एस्पिरेंट पास आउट होते हैं और वो जॉब की तरफ, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की तरफ पहुंचते हैं। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये नंबर बढ़ जाता है, और जैसा कि सर भी जान रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस दिन ब दिन बढ़ते भी जा रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। वो समय नहीं रहा है जो पहले कि ग्रेजुएशन किया और आपने जॉब पा ली, नहीं, वो समय नहीं है। तो आज हम उसी चीज पर फोकस करेंगे और मैं आशा करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। सो मैं यहां पर कुछ पीपीटीज आपके सामने शेयर करूंगा जिससे कि आपको भी मदद मिले। सर काइंडली प्लीज कंफर्म दैट माय मेनली स्क्रीन इज विजिबल। सर प्लीज एक बार कंफर्म कर दें कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है। वर्मा सर, स्क्रीन इज विजिबल। आई रिक्वेस्ट कि फुल स्क्रीन मोड के साइड में जो ये एक डबल बुक का साइन होता है, इसको सर एक बार प्रेस करेंगे आप, जो जूम इन जूम आउट के साइड में थर्ड आइकॉन है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दिस वन, उसका नेक्स्ट स्लाइड शो करना प्लीज। यस दिस वन सर, यस दिस वन। ओके दिस वन। Now move the slide. Okay. Yeah, slides are moving, sir, and you are audible. Please go ahead. Okay. So now आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ जीपैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की एंड अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। बट कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देखिए, हमें एक सिक्योर जॉब सबको पानी है, एक अच्छा पैकेज सबको पाना है, पर उसके लिए आपने कितने एफर्ट्स दिए वो मैटर करता है, और वो आपका शुरुआत होता है जीपैट से। देखिए मैं यहां पर आपको अगर आज बताऊं
कि काफी जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं आज वो आस्क करती हैं कि जी हर एक बच्चा हमें सीखा हुआ चाहिए, कोई कंपनी सिखाने का पैसा नहीं देना चाहती है, बट एक ऐसी स्किल जो आपको सारी चीजें, आपका बेसिक्स भी इंप्रूव करेगी, सारी चीजें इंप्रूव करेगी, वो एक हमारा फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज योर जीपैट। आप भी फार्मा फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, और आप चाह रहे हैं कि मैं सन फार्मा, नोवार्टिस जैसी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन को सिक्योर करूं, पर उन चीजों के लिए भी हमें बेसिक अच्छा सिक्योर करना पड़ेगा, बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं चीजों को लेकर मैं आज यहां पर बात करूंगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये ओरिएंटेशन हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा। सबसे पहले हम किस रियलिटी पर हैं, किस थ्रस्ट एरिया, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पर हमें बात करने की जरूरत है, आखिरकार हम किस तरीके से चल रहे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे और उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। और फिर मैं बात करूंगा कि आपका अगर कोई भी क्वेरी है, सर के माध्यम से मैं आपके सारे क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, देखिए आप अगर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, देखिए रियलिटी यही है, बी फार्म में एडमिशन या तो लिया है या दिलाया गया है। मैं सर एम्स की तैयारी कर रहा था, सर मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, पर मुझे सीट नहीं मिली, मैंने बी फार्मा चुन लिया। अब बी फार्मा आपने चुन लिया है तो अब हमें उसमें साबित करना होगा, ये फील्ड भी बहुत अच्छा है, आई एम प्राउड टू से दैट आई एम फार्मासिस्ट, लेट मी वेरी वेरी क्लियर। बट वो कब होगा, जब मुझे इस फील्ड के बारे में सारी जानकारी होगी। फर्स्ट ईयर में मैं मानता हूं कुछ नहीं पता होता है, पर कॉलेजेस अपने एफर्ट्स लगाते हैं ओरिएंटेशन के थ्रू कि आपको इस फील्ड के बारे में पता लगे, कौन कौन सी चीजें हैं, ये कैसे काम करता है। सेकेंड ईयर में आ जाते हैं, पता है, पर हम कंपटीशन की रेस में लग जाते हैं, हमें बस मार्क्स चाहिए। मैं कहता हूं मार्क्स भी जरूरी है, पर स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखिए कंपेयर तो कर लेते हैं एक बीटेक के स्टूडेंट से कि बीटेक का पैकेज इतना गया, हमारा तो 20,000 15,000 गया। वो क्यों? क्योंकि एक बीटेक के स्टूडेंट्स पर वो सारी स्किल्स हैं, वो अपनी कॉलेज के समय पर वो इतनी स्किल सीख लेता है कि वो अपने आप को आसानी के आसान भाषा में रिप्रेजेंट कर सकता है और एक अच्छा पैकेज पाता है। पर बी फार्म में क्या है, हम केवल सेमेस्टर सेशनल में रह जाते हैं, और अगर कोई खाली समय है तो हम उसको व्यर्थ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों पर काम करना होगा। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करता हूं तो लगता है कि समझ आ गया है, पर टाइम कम है, टेंशन हो गई, जॉब की टेंशन, फाइनल ईयर में जॉब टेंशन, एमफार्म करें, नौकरी करें, कॉलेज, हम कॉलेज को ब्लेम कर देते हैं कि कॉलेज प्लेसमेंट नहीं ला पा रहा है, बट वो ऐसी सच्चाई नहीं है। काफी कॉलेजेस, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस, रेप्यूटेड कॉलेजेस, आईएसएफ एक वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कॉलेज जो अभी अपनी रियलिटी पर काम कर रहा है, जो बच्चों के लिए काम कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो प्लेसमेंट्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उनको ग्रैब कैसे करें, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल की आपको कॉलेज रिप्रेजेंट करे, उन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे और उन सब चीजों को सीखना पड़ेगा। देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है, मैं सिंपल सी एक बात करूंगा, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को ऑब्जर्व भी किया है, बट सम ऑफ दी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का भी कुछ इशू होता है। जैसे अब होता है कॉलेज के स्टूडेंट्स के माइंड में क्या रहता है, सर कॉलेज ने इतना फीस ले लिया, नहीं, ऐसी सच्चाई नहीं है। कॉलेज आपको संसाधन भी दे रहा है, आप उन संसाधन को, उन फैसिलिटीज को कैसे यूज कर रहे हो वो मैटर करता है। 7 to 8 डेली क्लासेस होती हैं आपकी कॉलेज में, पर आप सीख कितना रहे हो? 3 घंटे की लैब होती है, क्या आपने वही कॉपी पेस्ट करके लिखा है? क्या जो टीचर ने आपको सारी चीजें सिखाई है वो हमें पता है? क्या हमारा मकसद केवल सेमेस्टर पास करना है? अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर, इन एग्जाम्स की हम तैयारी क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें नहीं पता होता है। नो प्लेसमेंट रिकॉर्ड, आप कहते हैं कि सर कोई प्लेसमेंट नहीं है, ऐसा सच्चाई नहीं है, प्लेसमेंट है। नौकरी पानी नहीं है, छीननी है। ग्रैबर बनना है, सीकर बनना है, ये याद रखिएगा। टेक्निकल नॉलेज, अगर मैं बात करूं, शायद आप लोग मोस्ट ऑफ दी आज का जनरेशन क्या हो गया, मोबाइल चलाना तो आता है, पर उसको टेक्निकल नॉलेज जैसे पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एक्सेल, एडोब, ये कैड, ये सारे सॉफ्टवेयर में हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो इन चीजों पर हमें काम करने की जरूरत होगी। ये हमारी आज तक की प्रॉब्लम है। हम कह तो देते हैं कुछ नहीं है, बी फार्मा का स्कोप नहीं है। लेट मी वेरी वेरी क्लियर, आई एम आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ बी फार्म। सौरभ सर इज आल्सो द प्रोडक्ट, सर ने भी बी फार्म शुरू किया, बी फार्म किया होगा। तो कहीं ना कहीं सीखने के नजरिए से हमें काम करना होगा। अब मैं यहां पर, अब आ जाती है बात, सर क्वेश्चन क्या क्या, सर हमसे तो होगा नहीं, सर जीपैट इज इम्पॉसिबल, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट।
आखिरकार मैंने जीपैट को यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट बताया? देखिए, जीपैट एक ऐसा रास्ता जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर तक होकर जाता है, फार्मासिस्ट तक होकर जाता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जीपैट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, जो कि आपको मौका देता है केवल फार्मा में कि एक ऐसा एग्जाम है जो कि एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। अगर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमें 4 साल मौका मिलता है, अच्छा मेनली अच्छा बेसिक्स हमारा इंप्रूव हो सके जीपैट के। अब मैं यहाँ पर कुछ सच्चाई बताऊं, अगर देखिए 4 से 5 लाख बच्चे यहाँ पर एज एन फार्मासिस्ट हमारे बनते हैं हर साल, पर एक कड़वी सच्चाई, केवल 10% जीपैट के, केवल 10% जीपैट के यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं। यस, 60,000 बच्चे देते हैं, उसमें से 6,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम केवल स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना छोड़ दिए हैं। हम केवल हैंड रिटन नोट्स, किसी ने कॉपी दे दी, किसी ने वो दे दिया, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो नहीं करते। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर कॉलेज जाएं कि जीपैट पढ़ें? देखिए, कॉलेज और जीपैट के सिलेबस में सिमिलैरिटीज हैं। अपने सेमेस्टर के सिलेबस को जीपैट के साथ मिलाइए, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो सिंपल सी बात है, कॉमन टॉपिक्स को लेकर चलें जो कि आपको आसान भाषा में आपको समझ में आएंगे। उसी के बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, अब आपका क्वेश्चन होता है कि सर आपने बता तो दिया जीपैट के बारे में, तो आखिरकार इसकी नॉलेज क्या है? तो जीपैट आपका ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि एक नेशनल लेवल एग्जाम है, और इसको ऑनलाइन कराया जाता है, एनटीए कराता है इसको, और इसकी मार्किंग स्कीम जो रहती है +4 -1 रहती है। फेलोशिप एंट्रेंस एग्जाम है, 125 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है। अब सर 125 क्वेश्चन आते हैं, लेट मी वेरी वेरी क्लियर चैंपियंस, आप लोगों को यहां पर मैं अगर बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बट हम तैयारी नहीं करते। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन से बात करूं, 2018 का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट किस एपरेटस के थ्रू किया जाता है? ट्रस्ट मी, आपने पढ़ा होगा, पर उस समय पे वो रटा होगा, गुडजेट एपरेटस उसका आंसर है। क्लॉटिंग फैक्टर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नंबर 10 स्टुअर्ट फैक्टर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे याद कर पाएंगे? नोट्स। और मैं यहां पर एक सच्चाई बता दूं, हम एक एमबीबीएस के स्टूडेंट से तो कंपेयर कर लेते हैं कि हम भी तो वही पढ़ते हैं, पर याद रखिएगा एमबीबीएस का एक स्टूडेंट, उसके पास फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के नोट्स रहते हैं। क्या हमारे पास रहते हैं? हमारी नेचर कैसा हो चुका है, हमारा मेनली फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा, एग्जाम के बाद नोट्स अलग रख दिए, फोटोकॉपी कराई, पढ़ लिया, किसी ने बनाया, अपने नोट्स हम अपने पास नहीं रखते, अपने से नहीं बनाते। तो कहीं ना कहीं इन स्किल्स की हमारे अंदर जरूरत है। अब यहाँ पर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, डिसाइडेड टू सक्सेस कट ऑफ, तो सीधी सी बात को समझिएगा, जो ये कट ऑफ है ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक मैं बता दूं आपको, +4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं तो आपका आसानी के साथ क्वालिफाई हो जाता है। पर अब देखिए, मैं यहाँ पर अगर आपको क्लियर करूं, कंपटीशन देखिए 2017 से अब बढ़ने लगा है, 2019, 18, 20, 21, और मैं यहां पर रिसेंटली अगर आज बात करूं 2023 में तो मार्क्स ही नहीं आते हैं, अब परसेंटाइल शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उस चीजों पर हमें ध्यान देखना है। अब ये सच्चाई, ट्रू फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं ट्रू फैक्ट्स। व्हाट इज ट्रू फैक्ट्स? तो एक सच्चाई अगर मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि हर साल कहीं ना कहीं 15% से स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जागरूकता हो रही है। और मैं यहां पर रिसेंटली एक एग्जांपल दे दूं, सन फार्मा रिसेंटली उन्होंने वैकेंसी निकाला, उन्होंने एक सिंपल सा एक लाइन लिखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि ओनली जीपैट क्वालिफाइड एलिजिबल कैंडिडेट्स या जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो 6 लाख बच्चे जो फार्मासिस्ट की तरह रजिस्टर हुए थे हर साल की तरह, उन्होंने उनमें से 60,000 में से वो 6,000 बच्चों में कंपटीशन हो गया। तो ये होता है क्रीमी लेयर। आप उन्होंने क्रीमी लेयर को अलग कर लिया और उसमें हमारी जॉब पाने के चांसेस और बढ़ गए। जीपैट एक ऐसा रास्ता जो आपके फार्मासिस्ट, स्नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर तक होकर जाता है, क्योंकि जीपैट में आपका बी फार्मा से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का सिलेबस आता है। बट एक बिटर फैक्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए 2021 की अगर मैं बात करूं, ऑन सिग्निफिकेंट नंबर्स, ऑन नंबर स्केल 47,942 बच्चों ने एनरोल किया जीपैट के लिए, और उनमें से भी 2,000 कम हो गए, 45,504 ने एग्जाम दिया। बट देखिए, मात्र केवल 8.5 या 9% बच्चे इसका क्वालिफाई कर पाए।
तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बेसिक्स की कमी है। उन बेसिक्स को ऐसा नहीं है कि 6 महीने की कॉलेज से छुट्टी ले ली और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर वाइज पढ़ते जाइए। आपके पास इतने अच्छे संसाधन है, फैकल्टीज हैं, उनसे बात करिए, उनसे उनके साथ समझिए, उन चीजों को समझने की कोशिश करिए। आगे मैं बात करता हूं इवेंट्स, डेट्स। अभी एग्जाम हमारा मई में जाकर होने लगा है, रिजल्ट हमारा जून में आता है, और मेनली जीपैट एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में आता है हर साल। अप्रैल में जाकर हम मेनली इसमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ मई, और थर्ड वीक में हमारा एनटीए एग्जाम हो जाता है। तो याद रखिएगा, डिक्लेरेशन हमारा जून में होता है। अब यहां पर देखिए, सिंपल सी बात, ये कुछ प्रेजेंटेशन आपको अट्रैक्ट तो करेगी कि सर पढ़ना चाहते हैं पर नहीं समझ में आता है। देखिए, हम सारी चीजें दोस्तों के साथ करते हैं, खेलना, पबजी खेलेंगे और एग्जाम, बट पढ़ाई के टाइम पे हम अलग क्यों हो जाते हैं? ट्राई टू यूज द ग्रुप स्टडी। दिस इज एन मेस्मराइजिंग टूल फॉर दी योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। क्योंकि क्या होता है, कम समय में सिलेबस ज्यादा होता है, टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इससे आप टॉपिक्स एक्सचेंज कर सकते हैं, समझने की कैपेबिलिटीज को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, शायद पढ़ा हुआ ना आए, क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वर्बली आपने रूम में, आपने अपने हॉस्टल रूम में, अपने क्लासरूम में, तो शायद वो क्वेश्चन आ जाए। हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, एक रात पहले हमने डिस्कस किया, अगले दिन वो क्वेश्चन आ गया। सो इट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें जानना है। अब जीपैट एक अग्नि परीक्षा क्यों बोला मैंने? क्योंकि कहीं ना कहीं ये फार्मा के लिए एक अग्नि परीक्षा है। अगर आपने इस एग्जाम को समझ लिया, फील कर लिया, तो आप फार्मा एग्जाम में, फार्मा अकेडमिक्स में जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में जा रहे हैं, तो आप कभी फेल नहीं। 125 क्वेश्चन की मैंने बात करी, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 4 ईयर का सिलेबस आता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि सर, अब देखिए, इंडियन माइंडसेट क्या होता है कि सर जब तक हमें किसी चीज में कोई फायदा ना दिखे हम वो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात, यस होना भी चाहिए, पर मैं यहां पर, अब जो कंपनीज हैं वो अच्छे पैकेजेस पर आपको जॉब ऑफर करना शुरू कर दी है अगर आप जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। क्यों? जीपैट क्वालिफाई किया गया, नाइपर में आप पहुंचे, नाइपर में अच्छी अच्छी कंपनीज, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, नाइपर में आप अगर पहुंचते हैं तो नाइपर में 27 लाख से 30 लाख तक का पैकेज जाता है। यस, ये सच्चाई है, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। गवर्नमेंट जॉब, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर की जब वैकेंसीज निकलती है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है, फार्मा का ही पूछा जाता है 90 to 95%, पर इन चीजों पे हमें काम करना होगा, हमें जीपैट को सीरियस लेना होगा। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं कि फेजेस, अब देखिए आपके 3 फेजेस हो सकते हैं। पहला फेज, या तो आपने मेजर सब्जेक्ट पढ़ लिए हो, या 1-2 सब्जेक्ट पढ़े हो, या अभी शुरू किया होगा, आप इन 3 फेजेस में से ही हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लेवल 3 में हो, मैं कहता हूं, क्योंकि अपने आप को अगर आपने रियलाइज कर लिया तो दैट इज द गुड पॉइंट। आप, मैं सिंपल सी एक बात करूंगा यहां पर, आप अपने आप को जितना अच्छे से समझ लेंगे अपनी स्टडीज में, अपनी कॉलेज लाइफ में, तो और अच्छा इससे कुछ नहीं हो सकता। शो ऑफ पूरी जिंदगी है, पर अगर आपने अपने आप को समझ लिया, हाँ मेरे को नहीं आता, ये कह दो, ये समझ लो कि मेरे को नहीं आता, पर अब मैं करने की कोशिश करूंगा, ये स्टेप ले लो। नहीं आता, आपने समझ लिया है, ठीक है, अब आप शुरू तो कर पाओगे ना। अब ये होगा, नहीं मुझे आता है, नहीं मुझे आता, तो ना तो सीख पाओगे ना कर पाओगे, तो दोनों चीजें नहीं हो पाती हैं। उसी के बाद मैं बात करता हूं, अब सिंपल सी बात, आप किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस को फॉलो करते हैं तो आपके पास जीपैट का सिलेबस होना चाहिए। याद रखिएगा, एक क्वालिफाइड पर्सन, टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है। देखिए, मैं यहां पर इस टॉपिक को क्यों बोल रहा हूं, एक बार क्या होता है मैं आपको सच्चाई बताता हूं, ठीक है। मैं यहां पर आपको क्लियर करता हूं, मैं आज भी अपने टीचर से मिलने जाता हूं, क्योंकि उन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है कि मैं यहां पर आपको ये डिलीवर कर पा रहा हूं, ये पॉइंट्स बता पा रहा हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे अंदर क्या है, हमने एक टॉपिक पढ़ा और हमारे अंदर वो सुपीरियरिटी आ जाती है, फिर हम टीचर को टोकने की कोशिश करते हैं, नहीं सर ये तो ये होगा। टीचर है, वो मेंटोर्स हैं, वो हमारे से ज्यादा जान रहे हैं, उन्होंने इनको सालों दिए हैं, टाइम दिया है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, समझने की कोशिश करिए और इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि नेगेटिव माइंड थॉट्स बहुत आती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे क्लियर नहीं होता है, ऐसे क्वालिफाई नहीं किया जाता। नोट्स, इन चीजों का ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डरने से कोई फायदा नहीं कि सर मेरे से तो होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचना बंद कर दें।
क्योंकि डरने का क्या मतलब, किसका डर के कुछ फायदा नहीं हुआ है ना। तो आप अपनी चीजों को शुरू करें, जीरो से शुरू करेंगे कोई बात नहीं, आज आधा घंटा पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, शुरू तो किया ना। लास्ट में जब निकलेंगे तब आप ये तो बोल पाएंगे खुद से सेटिस्फाई होगे कि हाँ मैंने किया है, अब चाहे कुछ भी हो देखा जाएगा। यस। उसी के बाद क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। अब यहां पर आपके सामने क्वेश्चन की सर हम तो क्वेश्चन या तो हम मेनली तुक्का लगा देते हैं इस लैंग्वेज में अगर बात करूं, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन आ रहा है ट्रोपेन एल्कोइड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। अब हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सीधी सी बात है हम इसे सही आंसर ढूंढेंगे। पर अगर हमें ट्रोपेन एल्क्लॉइड का पॉइंट पता होगा कि ट्रोपेन एल्क्लॉइड आखिरकार क्या है, भाई ट्रोपेन एल्क्लॉइड विटाली मोरिन टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है। विटाली मोरिन में ट्रोपेन एल्क्लॉइड कौन सा कलर देता है, वॉयलेट कलर देता है, वी फॉर विटाली एंड वी फॉर वॉयलेट, ठीक है। ऑर्निथीन से ये बायोसिंथेसाइज होता है। प्रोपेन एल्क्लॉइड में पाइरोलिडीन एंड पाइपरिडीन रिंग रहती है, मिथाइलेटेड नाइट्रोजन रहता है। अगर ट्रोपेन एल्क्लॉइड के बारे में हमें पता है तो हम आसानी से आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, एनडीडीएस का एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पॉपुलर सिस्टम है ऑक्यूलर डिलीवरी में जिसके थ्रू हम पिलोकार्पिन दे पाते हैं। देखिए जब हम आई ड्रॉप डालते हैं तो आंख से पानी निकलने रहता है, ड्रेनेज हो जाता है, तो सीधी सी बात है हमारी जो दवाई है जो मेडिसिन है वो रिटेन नहीं कर पाती है। तो अब उससे हमारे को पेशेंट कंप्लायंस और एफिकेसी एक्शन हमें नहीं मिल पाता। तो उसी चीज को इंक्रीज करने के लिए ऑक्यूसर्ट बनाया गया जिसके अंदर पिलोकार्पिन रखा गया और धीरे 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 कंट्रोल्ड मैनर में रिजर्वायर सिस्टम से ड्रग निकल रही है। यस ये सच्चाई है। तो ऑक्यूसर्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये तरीका है क्वेश्चन पढ़ने का। अब सर कि सर आपने बता तो दिया कि सर जीपैट ये है वो है, इसको शुरुआत कैसे किया जाए। देखिए जीपैट में आप सिलेबस पहले फॉलो करें और जिस टॉपिक में आप बेस्ट हैं उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है उससे मोटिवेशन आता है कि हाँ मेरा ये टॉपिक हो गया बस ये बचा है, तो इससे एक मोटिवेशन आएगा। क्वालिफाइड पर्सन फैकल्टीज के साथ टच में रहें, क्योंकि वो फैकल्टीज आपको वो सारी बातें बताएंगी कि जो नहीं करना चाहिए और जो करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका टाइम सेव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आगे मैं बात करूं व्हाट टू रेफर सर, देखिए सब्जेक्ट्स को जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर में डिवाइड किया गया। मेजर फार्मास्यूटिक्सोलॉजी, मेडकेम, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोग्नोसी। ये माइनर में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो बायोटेक, क्लिनिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अब हम मेजर में लेकर चलते हैं। क्यों सर मेजर और माइनर में क्या, देखिए मेजर सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, माइनर से पूछे जाते हैं पर कम पूछे जाते हैं। पर यहां पर अगर आप सेशन देख रहे हैं, अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि क्वेश्चन सॉल्व होके या एमसीक्यू प्रैक्टिस करके हो जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये सच नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चंस बेसिक से भी आने लगे हैं, पैटर्न से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सो नाउ अब यहां पर कि सर पढ़े कैसे, इतना सारा सिलेबस है। देखिए स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क को फोकस करें। कोई ट्रिक है, कोई फार्माकोलॉजी मिनोमिक्स है, क्लासिफिकेशन याद हो नहीं हो रही है, ट्रिक बना दो, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, रट नहीं सकते, रिवाइज टाइम टू टाइम नहीं किया जाता, पर उसको समझ कर एक बार अगर पढ़ेंगे तो याद हमेशा रहेगा। तो उसी के बाद अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज कि सर आपने स्टैंडर्ड बुक्स की बात करी, तो यहां पर मैं सिंपल सी बात करूंगा फार्माकोलॉजी और मेडकेम। क्या हमें ये पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं? देखिए जब भी आप बी फार्मा सेकंड ईयर में पहुंच जाएं तो ये आपके पास बुक आपकी पर्सनल होनी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन्हीं से हमें पूरा पढ़ना है। फार्माकोलॉजी की केडी त्रिपाठी, जब हम सेकंड ईयर में थे केडी त्रिपाठी हमारे पास थी, हमारे पास कोकाटे सर की बुक थी, हमारे पास एनके जैन सर की बुक थी, तो ये बुक्स हमारे पास सारी थी। और मुझे गर्व है मैं ऐसी जगह से पढ़कर आया हूं जहां पर मुझे जिन जिन लोगों ने ये बुक्स लिखी हैं, मुझे उनसे सौभाग्य मिला है, मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं उन लोगों से मिला हूं। यस एनके जैन सर, मैं सागर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने एमफार्म वहां से किया, हम मिले हैं, बात की है। दीक्षित सर से हम मिले हैं, एसके जैन सर से मिले हैं, सारी दे आर द रेस्पेक्टेड फैकल्टीज, ठीक है, इन सब अच्छा लगता है। तो अब इन सब्जेक्ट्स को कैसे फॉलो करें, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी, फॉय मेडकेम के लिए ये टॉपिक्स आपके लाइन टू लाइन तैयार होंगे, क्योंकि आपकी जो सेमेस्टर्स में फार्माकोलॉजी है वो पार्ट वाइज है, तो पार्ट वाइज ही आप तैयारी कीजिए। उसी के बाद फार्मास्यूटिक्स में बहुत 7 से 8 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, वी विल लर्न अबाउट द फिजिक्स इन द फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, वी विल लर्न अबाउट द मशीन।
Pharma tech, we will learn about the formulations, dispensing, how to dispense the medicine. Biopharmaceutics, what the drug does in the body, what would be the parameters we will study in the biopharmaceutics. Cosmetic technology, we will talk about the appearance, how to improve the physical appearance, cosmetics, nail paint की बात करें. Pharmaceutical jurisprudence, what would be the laws for the manufacturing, for the dispensing, वो हम pharmaceutical jurisprudence में पढ़ते हैं. तो ये सब हमारा फार्मास्यूटिक्स और इंडस्ट्रियल फार्मेसी आप यहां पर देख रहे हैं. आर के रेस्पेक्टेड सर, आर के खार सर, एसपी व्यास सर, जिन्होंने इंडस्ट्रियल फार्मेसी द थ्योरी एंड प्रैक्टिस दिया है बुक, इनसे हम पढ़े. यस, और ये बुक स्टैंडर्ड होती है. रेमिंगटन आप फॉलो कर सकते हैं. उसी के बाद फार्माकोग्नोसी. सर ये तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है. नहीं, दिस इज द मोस्ट सिक्योरिंग सब्जेक्ट. 10 क्वेश्चन आते हैं, कोई मैनिपुलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है. तो आप इसके लिए कोकाटे बुक सर की बुक आप फॉलो कर सकते हैं. प्रेजेंट एडवांस स्टैंडर्ड बुक्स. टॉपिक्स क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी से जैसे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पिनॉइड, कार्बोहाइड्रेट, रेजिन्स, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है. अब यहाँ पर फार्माकोग्नोसी पे मैं थोड़ा सा 10 सेकंड और लेना चाहूंगा कि सर क्वेश्चन किस तरीके का आता है. देखिए क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो क्वेश्चन आता है, आपने क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी जरूर पढ़ा होगा. क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी से कि कितने लाइकोपोडियम स्पोर्स होते हैं, 94,000 होते हैं. अगले साल पूछ लिया क्या साइज होता है, तो 25 माइक्रोमीटर होता है. ये इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं. उसी तरह से मैं बात करूं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, एनालिटिकल एस्से, थर्मल एनालिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट्स रहते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में. पाविया हम बुक फॉलो कर सकते हैं. हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वाई आर शर्मा और बहुत सारी बुक्स है. ये स्टैंडर्ड बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए अगर आपको वाकई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है. उसी के बाद बायोकेमिस्ट्री की बुक की अगर मैं बात करूं, सत्यनारायण सर की बुक. ठीक है. विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड साइकिल, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आप इनको फॉलो करें. ये टॉपिक्स मैंने आपको इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किए क्योंकि आप अपने आप को किस तरह से, जैसे होता है ना कि हाँ मेरा ये टॉपिक हो गया, अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है. लेट्स सपोज विटामिन, हमें पता है 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल इज एडीई के, ठीक है. वाटर सॉल्युबल बी एंड सी. अब फैट सॉल्युबल हमें पता है एडीई के होते हैं. यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ये बोलेगा विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, ठीक है, इसकी वजह से डेफिशिएंसी होती है, बट इसके स्ट्रक्चर में कौन सी बेसिक मॉलिक्यूल होती है, बीटा आयोनीन रिंग होती है. इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. याद रखिएगा. माइक्रोबायोलॉजी एनके जैन सर की बुक से आप फॉलो कर सकते हैं. माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, माइक्रोबायोलॉजिकल डिजीज, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप चाहे फार्मासिस्ट की बात करें, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर की, चाहे जीपैट, चाहे नाइपर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ सच्चाई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद फार्मेसी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का बहुत वीक पोर्शन भी होता है, बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग भी होता है. तो इसको हम बेल एंड बेल और एनसीईआरटी 11th और 12th का बेस्ट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको रटना तो है ही नहीं. अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, 11 क्वेश्चन आते हैं हमारे जीपैट में और 15 से 20 होते हैं नाइपर में, और फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. नेम रिएक्शन से पूछा जाता है. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. उसी के बाद अगर मैं बात करूं क्लिनिकल फार्मेसी, रेमिंगटन बहुत अच्छी बुक, ठीक है, जहां पर ड्रग और ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ये जो टॉपिक्स आप लोगों के सामने हैं. ड्रग अफेक्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो हमारे ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती हैं, ये सारी ड्रग्स के बारे में हमें बात करनी है. इस सब्जेक्ट के लिए आप रेमिंगटन को फॉलो कर सकते हैं. उसी के बाद में बात करूं बायोटेक्नोलॉजी के लिए, व्यासन दीक्षित सर की बुक हमारे पास रहती है, लाइब्रेरी में है, तो हम उसको स्टैंडर्ड मानकर पढ़ना शुरू करें. प्लांट सेल कल्चर, पीसीआर टेक्निक्स, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन कितने टाइप्स की होती हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत जरूरी होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है. इन चीजों को आपको फॉलो करना होना चाहिए. अब मैं आगे बात करूं, हाउ फार्मेसी इंडिया हेल्प्स यू टू अचीव योर ड्रीम्स. लेट मी वेरी वेरी क्लियर चैंपियंस, फार्मेसी इंडिया इज in the field of this pharma competitive exam from last 5 to 6 years, and we are happy to share with you that right now we are having around 4 to 5 lakh plus aspirants on our social networking platforms, those who are working, those who are learning from us.
एंड हमारा मुहिम क्या रहता है? हमारा मुहिम यही रहता है कि हम आपको समय के साथ अपडेट रख सकें, कॉलेजेस जो फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं उनके साथ जुड़ के आपको फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अवेयर कर सकें। और यही मुहिम के साथ हम आज यहाँ पर जुड़े हैं और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा सौरभ सर का, प्रिंसिपल सर का एंड चेयरमैन सर का एंड इस आईएसएफ कॉलेज की जो फार्मा फेटर्निटी है, जो पूरी टीम है, इस तरह का जो सेमिनार किया। मैं आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। लास्ट में मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू उत्सव वर्मा सर। डेफिनेटली आपने जिस तरह से इस वेबिनार को प्रारंभ किया and regarding competitive exams, GPAT, drug inspector, state pharmacist examination, all examination do require multiple choice question. वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, चाहे डिप्लोमा का एग्जिट एग्जाम ही क्यों ना हो। आपने जिस तरह से रेफरेंस बुक्स के बारे में बताया, जिस तरह से आज की डेट में टेम्परामेंट जो विद्यार्थियों का होता है उसे परिवर्तित करने की आवश्यकता है, एवं आपने ये भी बताया कि ग्रुप स्टडी का किस तरीके से बच्चों की स्टडी पे इफेक्ट पड़ता है। बच्चों में बहुत रॉ एनर्जी होती है, उनको चैनलाइज करना, उनको फोकस करना। तो डेफिनेटली मैं आशा करता हूं कि हमारे जो दर्शक है, ऑडियंस है, आपके इस सेशन से बहुत अधिक लाभान्वित होंगे। किसी तरह की क्यूरी, प्रश्नोत्तर यदि आती है तो मैं उसको आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करवाऊंगा। आपका ISFCP से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उत्सव जी, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपके सेशंस के लिए आप हमें अपना बहुमूल्य कीमती समय प्रदान करेंगे। वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी, IQAC सर। थैंक यू सर। थैंक यू।